जो कि arise होता है, which is failure as the first step to success. Like it is also a brainy quote by William Wevell. Failure हमेशा it's the first step to success. Like initially जब हम लोग कोई step लेते हैं हमारे पास failure लाजमी आता है. So now to explore this idea and put a light on this very common matter and topic, I would like to introduce Dr. Ali Alias Napar, जो कि हमारे speaker है, who is student at CMC Larkana, Chanka Medical College, who has been working for the goodness of students. Sir, it's pleasure to have you, and now I want you to continue the session and speak up. And I want all the participants to listen carefully in order to understand the subject matter. And in case of any queries and questions, just type it in the chat box so that I could forward it to the speaker. Sir, over to you. Hello, assalamu alaikum everyone. First of all, thank you so much, the host speaker Mawa Kasi, for introducing me and with a great respect. And I'm it's very honor for me and for giving me the session. First of all, I'm very thankful to the aptitude testing service. Am I audible to you all? Yes, sir, you are. Am I audible to you? You're So, audible to all of them. Thank you so much. Okay. First of all, is introduced by the host. So this is me, Dr. Alilia Snapper. I am the student of Chanka Medical College, Larkana. And again, I'm very thankful to the aptitude testing service for handing me this session and to creating the awareness about this topic that is, very important and, very a little touched in our society. अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द मिड केड एस्पायरेंट्स, नॉट जस्ट फॉर द एस्पायरेंट्स बट एवरीवन हु इज वर्किंग देयर. तो जो भी बंदा स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है इन एवरी फेस ऑफ लाइफ, दिस विल गोना help it a lot, and especially this session for the mid-kid aspirants. So I will share you my experience as well कि मैंने entry कैसे दी थी, और because I was also the improver, और मैंने भी ही improve होकर ही वो जो मैंने टेस्ट दी थी. तो let's get started. So the session that already that is already introduced by the host, that was the failure is the first steps of the success. So okay, let's get started. अच्छा, तो हमारी जो failure, I would like to start with the quote that you must fail 100 times to succeed once. You must fail 100 times to succeed once. अब आप इस कोड को देखें तो आपको जनरली जो भी मेरा जो आपको आउटलाइन टॉपिक की सारी इस कोट में ही मिल गई होगी, क्योंकि जो मेरे आज अपकमिंग सेशंस हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, दे आर नॉट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें से सारी चीजें ये आपका कोट ही डिपिक्ट कर रहा है. तो आपको 100 टाइम्स फेल होना पड़ता है कोई भी एक चीज को गेट करने के लिए, किसी भी एक So you must fail 100 times to succeed once. अच्छा, तो let's get started. अब आपको मैं फर्स्ट पॉइंट अबाउट दिस फेल्यूर के बारे में बताता हूँ कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है कॉमनली, दैट इट इज वेरी मिस इंटरप्रेटेड टॉपिक. इट्स वेरी मिस इंटरेस्टेड वर्ड वी कैन से फेलियर. आप जिससे भी सुनेंगे, आई फेल्ड दैट एग्जाम, आई फेल्ड दैट etc, they will take it negatively. और मैंने खुद लाइफ में ऐसे काफी एग्जांपल्स देखे हैं, काफी लोग देखे हैं जिनको आप अपनी फेलियर को बताएंगे तो दे गोना डिप्रेस यू, ऑलवेज दे गोना डिप्रेस यू. You will find 100, you will find 100 that will degrade you, that will depress you. But आपको काफी लोग कम ऐसे मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे और आपको फेलियर का पॉजिटिव एस्पेक्ट बताएंगे. अच्छा, तो मैं आपको आज फेलियर का
पॉजिटिव एक्सपेक्ट बताने लगा हूँ। मैं आपको नेगेटिव नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी सोसाइटी इज फुल ऑफ दैट. So I'm going to tell you the positive aspect, uh, of the, of failure. So first of all, the failure, all for the mid-kit aspirants. This session is especially for the mid-kit aspirants, and you should listen all, because mid-kit जब भी टेस्ट होती है तो there are thousands. अब तो नेशनल लेवल पर पीएमसी ले रही है, तो इट्स एट नेशनल लेवल. तो सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स टेस्ट देंगे. तो जरूरी नहीं कि जो जो एस्पायरेंट टेस्ट देंगे वो सारे पास होंगे. इट इज नॉट नेसेसरी, एज इट्स वेरी डिफिकल्ट फेस, इट्स वेरी टफ फेस, और उसका इट्स ए वेरी न्यू एक्सपीरियंस. तो इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू ऑल पीपल. तो काफी लोग सक्सेसफुल भी होंगे, काफी लोग ऐसे होंगे जो आपके फेल भी होंगे. तो उसके बारे में ही आपको बताने लगा हूँ. जस्ट लाइक एक कोट था कि हमारे सोसाइटी में ऐसे तो होता है कि बच्चे को ऐसे तो कहते हैं, अगर तुम सक्सेस हासिल करोगे तो तुम्हारा ये होगा, हम तुमको ये देंगे, तुम्हारी बहुत सारी तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी. बट कभी उसको ये नहीं कहते कि यार तुम अगर फेल हो गए तो तुम्हें क्या करना चाहिए. ये हमारी सोसाइटी में काफी कम ऐसी गाइडेंस दी जाती है. तो वन शुड गो बोथ. उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखे बंदा, नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखे. अगर नहीं हो रहा तो मुझे क्या करना है. यही चीजें होती हैं जो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. तो इट वाज जस्ट अ सिंपल इंट्रो, सो लेट्स डिस्कस फर्दर अबाउट दिस टॉपिक. अच्छा, तो इट्स the first point that is it's going to like it keeps you the first of all, I already told you that this is the very misinterpretation of the failure. तो अब मैं आपको पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स बताता हूँ, ऐसे फेलियर का पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स बताता हूँ कि यू विल रियली यू विल थिंक दैट फेलियर तो हमारे लिए अच्छा है, फेलियर हमारे लिए बुरा नहीं है. अगर हमारे पास फेलियर आता है तो किसी न किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से आता है. अगर आपको फेल हो गए हैं आप, तो किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हुए हैं. आप उस रीजंस को रेक्टिफाई करने के लिए ही आपके पास फेलियर आया. अच्छा, तो पहली बात ये कि यू गेट अ चांस टू करेक्ट योर ब्लंडर्स. You get a chance. Listen again, you get a chance to correct your blunders. आपको एक पर्टिकुलर चांस मिल जाता है कि आपके जो जो ब्लंडर्स हैं वो करेक्ट हो जाते हैं. आपको जो भी ब्लंडर्स किए आपने प्रायर टू द टेस्ट, वो अब आपको करेक्ट करने हैं. तो अब जब आप ब्लंडर्स नहीं करेक्ट करोगे, इसके मैंने काफी एग्जांपल्स देखे हैं. जिस बंदे ने ब्लंडर्स करेक्ट नहीं किए और आगे गए, उनको आगे बहुत प्रॉब्लम हुआ. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. काफी लोग ऐसे थे जिनकी फिजिक्स अच्छी नहीं पड़ी हुई थी. तो उन लोगों ने जब टेस्ट दी तो वो कैसे न कैसे ऐसे काम निकाल गए. ऐसे लक होती है कि फिजिक्स से वो क्वेश्चंस आते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, काफी कम होता है, तो वो टेस्ट निकाल के गए. अब जब आगे वो मेडिकल कॉलेज में गए तो दे हैड टू फेस फिजिक्स. काफी ऐसी चीजें थी जो फिजिक्स से रिलेटेड थी. तो अब वो उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही है आगे जाने में. क्यों? क्योंकि उन्होंने सक्सेस तो हासिल की, बिल्कुल की, बट उन्होंने अपने ब्लंडर्स सही तरीके से करेक्ट नहीं किए थे. तो जब आपको फेल्यूर आएगा तो आप ब्लंडर्स को रेक्टिफाई करने की आपकी एबिलिटी होगी, वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. तो अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आप फिजिक्स पर काम करें, आपकी केमिस्ट्री वीक है तो आप केमिस्ट्री पर काम करें, आपकी कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई वीक एरिया है तो उस वीक एरिया पर ही काम करें. दिस इज व्हाट फेल्यूर टीचेस यू. दिस इज अच्छा, फेल्यूर जो है मिडकेट में इम्प्रूवर होता है, जो इम्प्रूव करता है. तो उससे मैं रिलेट करूं तो इम्प्रूवर का वर्ड की मीनिंग है जो इम्प्रूव करता है. क्या इम्प्रूव करता है? वो चीज इम्प्रूव करता है जो उनने दैट वर द काज ऑफ फेल्यूर फॉर द प्रीवियस टेस्ट ही गेव. जो टेस्ट वो देता है और उसमें जो मिस्टेक्स होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए या उसको रेक्टिफाई करने के लिए वो आपको क्या होता है, उसको जो है आपकी क्या कहते हैं कि उसको करेक्ट करने के लिए. तो आप इम्प्रूव करें वो चीजें जो आपकी वीक हैं. तो दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज योर, इट गिव्स यू अ चांस टू करेक्ट योर ब्लंडर्स. आप अपने जो जो आपके बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं आप वो करेक्ट करते हैं. इट्स वेरी ग्रेट थिंग. अच्छा, अल्टीमेटली जब आपने अपने ब्लंडर्स करेक्ट किए
तो ऑब्वियसली देयर विल बी द सेल्फ ग्रोथ, देयर विल बी द सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आपने पहले कौन सी चीजें आपकी वीक थी, स्लोली ग्रेजुअली वो चीजें आपने सही करना शुरू कर दी। वो चीजें जब आपने सही शुरू करना शुरू कर दी तो आप में एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट आना शुरू कर देगी। आप अपने आप में एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। अच्छा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आ गई तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट ग्रोइंग योरसेल्फ, सेल्फ ग्रोथ होगी। अच्छा, मैं अपना एग्जांपल दूं इसमें, तो जब मैंने एंट्री दी थी तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल किया था। तो like I was never, it hits hard। तो वो आपको बहुत तंग करता है फेल्यूर, आप डिप्रेस हो जाते हैं, इट्स नॉर्मल, इट्स साइकोलॉजिकली आप वो चीजें फेस कर रहे होते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। बट जब ये चीजें ज्यादा खराब हो जाती हैं, लाइक आप डिप्रेशन में चले गए, इट्स ओके, बट आप ओवर डिप्रेस होंगे देन इट वुड बी वेरी बैड, इट वुड बी वेरी बैड। तो आपको वो साइकोलॉजिकली, आपको फिजिकली, आपको मेंटली दे विल नॉट अलो यू टू लिव योर लाइफ, बट आप में अगर ये चीजें हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ, तो यू विल फील योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, और आपको कहेंगे कि फेल्यूर तो मेरे लिए खराब है ही नहीं, मैं क्यों लूं फेल्यूर को खराब। आप अपनी पॉजिटिविटी को इतना स्ट्रांग करें कि आपकी नेगेटिविटी उसमें दब जाए, वो नीचे ही चली जाए। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड इतना हो कि वो आपको इट इट शुड कीप यू गोइंग। फेल्यूर आए नो प्रॉब्लम, फेल्यूर आता है नो प्रॉब्लम, आता है नो प्रॉब्लम, आता है नो प्रॉब्लम, कीप इट कमिंग। बट फेल्यूर के बाद जो इम्प्रूव करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप फेल्यूर आता है, जिस वजह से आता है वो चीज इंप्रूव नहीं करते, तो दैट इज नॉट एक्चुअली योर फेल्यूर, आप फेल्यूर ही रहते। तो व्हेन यू आर अ फेल्यूर एंड you are trying to improve that thing that failed you, that is the very important and brilliant thing। Okay, the second thing, that there is no thing as a failure, if you try it fully you are successful। हमारी सोसाइटी में अगर आप इसे फेल्यूर लेते हैं तो फेल्यूर जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं। आपके डिक्शनरी में भी, आपके माइंड में भी, इस वर्ल्ड में भी कोई भी फेल्यूर जैसी थिंग ही नहीं होती। सोसाइटी क्रिएट करती है, आप खुद क्रिएट करते हैं, बाकी फेल्यूर जैसी कोई भी चीज नहीं होती। अगर आपने अपने पूरा दिया, अपने आपने पूरा दिया, और आप उसमें आपने आप पूरा सेटिस्फाइड है, आपका जो मिडकेट का सिलेबस है वो आपने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा, और अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपने फेल की, तो इट्स वेरी ओके, इट्स वेरी ओके। यू ट्राई योर सेल्फ बेस्ड, आपने अपना पूरा दिया, आपने अपनी सेटिस्फिकेशन उसमें डाल दी, और आपने वो चीज सारी करने के लिए आपने जो एनर्जीज थी वो लगा दी, देन यू आर सक्सेसफुल, यू आर नॉट फेलियर। इवन दो आपने टेस्ट में फेल हो गए, बट आप खुद के लिए सक्सेसफुल हैं। It's very important and a wonderful point one can ever go through। Okay, the second thing, the third thing, sorry, that is like it is always this like yeah, success is measured by the outcome, not efforts। अच्छा, तो हमारी जो सक्सेस होती है, तो फेल्यूर जब होता है, जब कोई भी बंदा फेल्यूर होता है और जो जिसको सक्सेस मिल रही होती है, तो उसकी सक्सेस जस्ट उसके आउटकम से देखी जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ नहीं पढ़ा तब भी मैं फिर पास हो गया, तो मेरी आउटकम है पास हो गया, हालांकि मैंने सही नहीं पढ़ा था इतना। बट ऐसा बंदा जिसने पढ़ा, जिसने बहुत अच्छा पढ़ा था, उसको हमने देखा था कि ही इज वेरी पंक्चुअल, ही इज वेरी डिटरमाइंड, ही इज वेरी honest to his honest to himself or herself, और उसने वो क्लियर नहीं कर पाया, तो हम उसकी एफर्ट्स को नहीं देख रहे, हम उसके आउटकम को देख रहे हैं। जिस बंदे ने पढ़ा भी नहीं फिर भी सिलेक्ट हो गया। तो आप अपनी एफर्ट्स को देखें काइंडली, आप अपनी कितनी एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप सुबह उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एकेडमीज ज्वाइन कर रहे हैं, अपने माँ बाप का जो आपको वो अपने माँ बाप की सपोर्ट है वो आपको दे रहे हैं, आप इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, आप अपने आप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, अपनी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, all these you are going to fix, you're going to fix all these things। तो these are efforts। ये आप efforts खुद के पास दे रहे हैं, तो काइंडली जब आप फेल हो तो ये अपनी चीजें efforts देखें। जब आप efforts देंगे तो you will have energy to grow again। आपको अगेन ग्रो होने की एनर्जी होगी। मुझ में एबिलिटी है, मुझ में ये ताकत है, और मैं खुद अगेन लाइक में अगेन मैं दे सकता हूँ एंट्री। एंड लाइक kindly mute your mic, anyone who is it's disturbing like। अच्छा, तो उसके बाद जो है,
द सेकंड पॉइंट, दैट नंबर ऑफ लेसन्स यू गेट इन फेल्यूर, जब आप फेल होते हैं तो लाइफ तो खुद तो आपकी लाइफ तो आपको खुद काफी चीजें सिखाती है। लिटरली आप सक्सेस में कभी भी इतना गेट नहीं करते। सक्सेस आई, आप अपने मजे किए, आप यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गए और भला भला एक्सपीरियंस भी नहीं मिला आपको। जब आप फेल होते हैं ना, रियल स्ट्रेंथ तब बनती है, रियल लाइफ का सेंस तब पता चलता है आपको। हर किसी बंदे का जो आपके पास, आपकी जो उसके जो आपकी उसका जो टुवर्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स आपके साथ था, वो आपके फ्रेंडशिप के बारे में पता चलता है, आपके लोगों की सच्चाई के बारे में पता चलता है। इसे काफी अनकाउंटेबल लेसन्स आपको फेलियर में मिलते हैं जो आपको सक्सेस में नहीं मिलते। उसमें से आपको मैं बताता हूँ कौन कौन से लेसन्स आपको मिलते हैं। फर्स्ट वन, द लेसन दैट यू गेट इज एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस मिलता है। जब भी आप फेल होते हो तो आपको क्या मिलता है? एक्सपीरियंस मिलता है। यू गेट अ लॉट एक्सपीरियंस। लाइक आपने पहले जो लाइक एंट्री दी तो उसमें आपकी काफ़ी मिस्टेक्स थी, आपकी सॉल्विंग एबिलिटी सही नहीं थी, आपकी फिजिक्स पे प्रॉब्लम्स पे ग्रिप नहीं थी। तो आपने कहा कि मेरा फॉल्ट किधर है, वेयर देयर इज अ फॉल्ट आई एम गोइंग टू रेक्टिफाई दैट। स्लोली ग्रेजुअली आपके जो वीक एरियाज थी आपने उसको डेवलप करना शुरू कर दिया। वो चीज़ें जब आपने डेवलप करना शुरू कर दी तो आपको अल्टीमेटली एक्सपीरियंस हुआ। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू लर्न इन फेल्यूर। द सेकंड थिंग इज नॉलेज। आप जब डायरेक्ट सक्सेस होती है तो आपकी इतनी नॉलेज, लिमिटेड नॉलेज होती है जो पास करने के लिए ही आपको होती है। बट आप जब इम्प्रूव करते हैं तो आप वो चीज़ें भी पढ़ते हैं। जब आप फेल होते हैं तो वो चीज़ें भी आपको अल्टीमेटली वो आपके दिमाग में होती हैं और काफ़ी ऐसी चीज़ें, नॉलेज आपके माइंड में होती है। उसके बाद आपका सेकंड फैक्टर होता है, दैट इज द नॉलेज। ठीक है, आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ना शुरू कर देती है और अंडरस्टैंड, और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इट्स ओके टू फेल। आप आगे जब आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है, आपकी जब आप खुद सीनियर हो जाएंगे, जस्ट लाइक आई एम डिलीवरिंग लेक्चर नाउ, मैं भी एंट्री का एस्पायरेंट हुआ करता था। जब मैं फेल ना होता, इफ मैं 2 बार फेल ना होता एंट्री में, तो आज मैं ये लेक्चर नहीं दे रहा होता। तो आपको क्या होता है कि इट्स, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि इट्स ओके टू फेल, इट्स वेरी ओके टू फेल। ऐसी कोई भी बात नहीं, इट्स अंडरस्टैंडिंग इट्स वेरी ओके टू फेल। और हमारी सोसाइटी में ये कहा ही नहीं जाता कि इट्स ओके टू फेल, वहाँ कहा जाता है इट्स नॉट ओके टू फेल। आपने फेल क्यों किया? इट्स वेरी ब्लंडर एंड इट्स वेरी रॉन्ग। एंड सुसाइड जो भी हो रही है आजकल, इट्स काफी काजेस ऐसे भी होते हैं कि जो बंदे डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड, अगर आप एक ही जगह पे बैठे हैं, आपको लोग नहीं तंग कर रहे, तो आप यू विल बी ओके। बट आप जब लोगों में आ जाते हो तो आपकी एक ऐसी मेंटेलिटी क्रिएट हो जाती है कि आप वो हद जो चीज़ आप नहीं कर रहे होते, तो वो आप चीज़ लोगों को दिखाने के लिए करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना सिखाता है फेल्यूर कि यू, इट्स वेरी ओके टू फेल, इट्स वेरी ओके टू फेल। एंड दीज वर ऑल द थिंग्स। एंड उसके बाद लास्ट थिंग दैट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट, उसके बाद ये कोट पढ़ के मैं सेशन पूरा करूंगा। दैट इज द नेवर क्विट। आप कभी भी क्विट ना करें, कभी भी क्विट ना करें। जब आप क्विट करते हैं तो आपकी, जब जब द मोमेंट यू क्विट, ऑल द एनर्जीज, ऑल द थिंग्स दैट यू डिड, ऑल विल गो इन वेन। वो ऐसे जैसे दरिया में फेंकते हैं ना, कश जैसी चीज चली जाती है हमेशा के लिए, वो वैसे ही चली जाती है। तो आप अपने टैलेंट को जाया ना करें। नेवर क्विट, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग अंटिल यू हिट द टारगेट। अच्छा, फिजिक्स में आपने एक चीज पढ़ी होगी, दैट इज द ट्रेजेक्टरी मोशन, ट्रेजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, तो ट्रेजेक्टरी जो होता है, जो पाथवे होता है इसका प्रोजेक्टाइल का, वो क्या करता है, जो जिस जब द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग होती है और पॉइंट ऑफ हिटिंग होती है, तो आपका गोल क्या होना चाहिए? पॉइंट ऑफ हिटिंग। अगर मैं यहाँ से चीज स्टार्ट कर रहा हूँ तो जो मेरा जो गोल है वो इट शुड डायरेक्टली हिट द गोल। जब तक हिट नहीं करेगी, मैं लीव नहीं करूंगा। तो दिस डिटर्मिनेशन, this will keep you this will keep you going and never quit. Failure I try, failure करें I, it will keep you going until you get the success. And believe me, हैप्पी एंडिंग होती है हर चीज की। अगर आपको जब तक सक्सेस मिल गया तो समझें आपको सक्सेस तभी मिला है। अब इफ नहीं मिल रहा तो समझें कहानी पूरी नहीं हुई। इट्स स्टिल गोइंग, यू हैव टू ट्राई टिल यू गेट। एंड ऑब्वियसली इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस। अल्लाह किसी की भी मेहनत रायगा नहीं देने जाता, कभी भी किसी की भी मेहनत रायगा नहीं जाती। जितना आप पढ़ते हैं आउटकम उतना ही आपको मिलता जरूर है, यू नो वो जरूर मिलता है।
इवन थीफ की भी अपनी जो मेहनत करता है, इट्स वेरी रॉन्ग, बट उसकी भी कामयाब होती। यू आर आल्सो अ स्टूडेंट, सो यू शुड आल्सो ट्राई ऑल दीज थिंग्स इन फेल्योर। सो अब मैं बताऊं कि मैंने क्या क्या बताया आपको, फेलियर के बारे में बताया, मिस इंटरप्रिटेशन जो सोसाइटी में हो रही है उसके बारे में बताया, एंड आपको वो कीप्स यू गोइंग, आपको वो इट लेट यू गो ऑन, आपको वो चांस देता है कि आप ब्लेंडर्स अपनी करेक्ट करो, आपकी सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट करवाता है, आपकी जो काफ़ी ऐसे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, लेसन्स आप फेलियर में से सीखते हैं। So these were all the contents of my today's session. I hope that you get a lot from these, and if you have any question you can ask. Thank you so much. Okay, sir. बिल्कुल सही कहा आपने. The fear of failure is a serious block in everyone's life, right? I appreciate your words. I value the help you have given to our participants, and we value and respect your opinion. Sir, ऐसा अक्सर होता है जब आप पहले किसी स्टेज पे जाते हैं, ठीक है. मैं खुद I'll give you example. जब फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे गई थी, मेरी एनर्जी अलग थी, लेकिन बाद में बार जब मैं गई, अब मेरी एनर्जी अलग होती है. तो जब आप अपना टारगेट बीट करते हैं, so then no one can mislead you. So just give it a try, guys. If you do not try, you shall regret the decision for the rest of your life, ठीक है. There are so many great minds जिन्होंने achieve किया है so much in their life through faith, through patience and hard work, of course. So I'm not saying that it will be easy, but not trying is an act of coward. तो coward और बुज़दिल ना बने, सही है. Just put your best foot forward and make it happen. Never let the fear of failure come in your way. Now just ask your questions in the chat box so that I could forward. अगर कोई question है, you should ask, guys, for the self improvement. अच्छा, माइक पे बता बोल सकते हैं क्वेश्चन कोई भी, कैन आई? जी बिल्कुल. अच्छा, sir, I forgot the name, and doctor sir. Actually, I have a question, simple question. सेशन बहुत वंडरफुल था माशाल्लाह से, बट मुझे एक चीज़ बात समझ में नहीं आई. इट्स नेसेसरी टू बी फेल फॉर द सक्सेस, या नेसेसरी है कि हम फेल हो जाएं कि मज़ा आ जाए और फिर सक्सेसफुल हो जाएं? अच्छा देखें भाई, लाइक इट्स वेरी एक्सीडेंटल, ठीक है, फेल्यूर इज एक्सीडेंटल, आप नहीं चाहते कभी भी फेल्यूर आए, ठीक है. जी जी अच्छा, मैंने पूरे सेशन में ये नहीं कहा कि आप फेल हो, मैंने ये नहीं कहा. अच्छा, मैंने नहीं वर्ड यूज किया अगर आप फेल होते हैं. अच्छा, तो अगर आप फेल होते हैं तो उसके बाद जो आपकी जो आपकी सिचुएशन हो जाती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फेस. अच्छा, इन ऑर्डर टू फेस दैट यू शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड. अच्छा, तो किसी भी चीज में, क्योंकि मैंने कहा ना, पहले भी कहा कि जब भी आप टेस्ट देंगे तो सारे के सारे पास नहीं होंगे. देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स टू फेल. जो फेल होंगे उनके लिए ये जी. मैंने सेशन रखा था, क्योंकि देयर विल बी द ग्रेट क्वांटिटी ऑफ फेल्योर ना, सीट्स लिमिटेड हैं, आपको पता है. तो अच्छा बजाय कि हम उनके बारे में बताएं कि जो पास हो गए उनको तो हैप्पीनेस हो गई, वो जो बेचारे बचते हैं, जो मेहनत करके भी नहीं होते, स्पेशली दिस सेशन वाज फॉर दोज ऑल. बाकी आई माय हार्ट प्रे फॉर यू ऑल पीपल दैट इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस, अच्छा इंशाल्लाह यू विल गेट अच्छा, सक्सेस. सही बट इन है केस यू आपकी आर नॉट बात. गेटिंग, then it's very important session एक्चुअली for you. Sir, एक्चुअली सर, question है. बात ये है कि जो है ना, आपके सेशन का जो है ना टाइटल था, फेल्योर इज द फर्स्ट स्टेप जी जी, टुवर्ड द सक्सेस. तो या अगर देखें, नेगेटिव नहीं लीजिएगा, जो है ना, ये डिस्कशन इम्प्रूवमेंट्स के लिए, आपको पता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें. तो बात जी यह है जी कि सिंपली देखें, अगर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग, एक्चुअली स्टूडेंट्स में लेकिन क्या होती है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते. इट्स नॉट नेसेसरी टू बी फेल फॉर द सक्सेस, एनी काइंड ऑफ सक्सेस. अगर हम वेल प्लान होंगे, अगर हमारे पास मेंटोरशिप कोई मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, गाइड मिल रही है, अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं, वेल प्लानिंग के साथ हमारी प्रॉपर हार्ड वर्किंग है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम जो है ना फेल्यूर से ही सीखते हैं. सिर्फ हम जो है ना अच्छी तरीके obviously से प्लान obviously it's करके, और मेंटोरशिप से, प्रॉपर मेंटोरशिप हो, गाइडेंस हो, हमारी देखें विजन और माइंडसेट हो ना, टारगेट हो,
एंट्री टेस्ट क्वालिफाई करना, मेडिकल की डिग्री हासिल करना, ये सक्सेस नहीं है. इट्स नॉट अ सक्सेस. बट वी शुड हैव अ टर्मिनल गोल्स कि हमारी एंड एंड क्या अचीव करना चाह रहे हैं लाइफ में, अचीव क्या करना चाह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा. ठीक है. और सक्सेस शॉर्ट टर्म नहीं होती, लॉन्ग टर्म जो है ना, एक्चुअल सक्सेस तो लॉन्ग टर्म वाली सक्सेस होती है. मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो वेल प्लान्ड होते हैं, जिनकी मेंटोरशिप होती है, जो एक तरीके से जाते हैं, एक विजन के साथ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं. ठीक है. एंट्री Yes. टेस्ट ये सारे हर जगह पे होते रहते हैं. ठीक है. तो In आई थिंक short, सो. जी जी. तो मैंने ये इस सेशन मैंने कम्प्लीटली सुना. तो मुझे ऐसे लगा कि फेल्योर को प्रमोट हुआ जा रहा था, किया जा रहा था. फेल्योर से ही सिर्फ नहीं सीखने को मिलता है. हमें जो है ना, प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए होती है, और प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, और प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए. अच्छा अच्छा, मैंने और आपको मैंने आपको पहले भी कहा कि दिस सेशन स्पेशली ऑल मिडकैंट के लिए है. मैंने पहले भी कहा कि हमारी सोसाइटी में ये तो सिखाया जाता है कि आप सक्सेस करेंगे तो ये होगा. अगर आप फेल होते हैं, हर कोई बंदा फेल होता है, यू आर नेवर परफेक्ट. सक्सेस आपको कभी भी, ये जरूरी नहीं कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिले, पर आपको जब आप फेलियर होते हैं आपको, तो ये चीजें आपको सीखनी पड़ती हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जिसका भी एग्जाम्पल है, दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसने फेल्योर से ना गुजरा हो. तो जब भी आप गुजरे तो ये चीजें जरूर करें. इट्स द मेन थीम आई वांट टू से. अच्छा, थीम अच्छी थी, टाइटल का मुझे थोड़ा लगा, इस वजह से सॉरी अगर आपको कोई बुरा लगा. नो नो अ, नो, इट्स ऑल मीन यू हाँ. इट्स आप कौन से सेमेस्टर से हैं? इसरार अहमद, ये आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है. जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक कि कोई भी कुछ भी हो, आप अपने जहन में जितना भी रखे कि आप पास होंगे, आप नहीं हो सकते. आपके हार्डवर्क पे भी डिपेंड करता है. तो वही मैं कह रहा था, वेल प्लान्ड होगा, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, बट वेल प्लान्ड हो गया, अकॉर्डिंगली करेंगे तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि हम फेलियर फेस करें फर्स्ट अटैम्प्ट में. काफ़ी बंदे सक्सेसफुल हो जाते हैं. चलें, ठीक है. ओके सर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि why we should consider outcome as criterion of success, because this criterion is supported and promoted by society and not the efforts. मतलब कि सोसाइटी आपको वो करती है, पुश करती है कि आप ये करो, मतलब आपको सक्सेस के लिए पुश करती है. इनका मतलब शायद ये है. व्हाट डू यू से? Actually, the question, if she could ask in Urdu, so it would be very easy for us. क्योंकि I प्लीज think it's the. जिसने पूछ, जी जी. अब्दुल रहमान खान, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उर्दू में प्लीज, so that he could understand. आप माइक के थ्रू भी मतलब लाइक पूछ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अब्दुल रहमान. मेरा क्वेश्चन था कि अगर सोसाइटी हमें सपोर्ट करती है आउटकम्स के, मतलब कि अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सोसाइटी हमें बोलती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया. लेकिन हालांकि एक स्टूडेंट को, एज ए स्टूडेंट, हमें ये होना चाहिए कि हम अपनी एफर्ट्स में फोकस करें. सक्सेस एक बाद की चीज है. मेरा ये क्वेश्चन था. तो इट्स वेरी ग्रेट थिंग. अगर आप सोसाइटी पर डिपेंडेंट नहीं. एक्चुअली मैं आपका बताऊं ना, कि मैं कभी भी सोसाइटी पर नहीं चलता था, मैं खुद पर चलता था. तो जब आप खुद के साथ चलते हैं ना, अपनी फर्स्ट देखते हैं, तो फिर सोसाइटी की कोई भी जरूरत नहीं होती. क्योंकि सोसाइटी पर ही डिपेंडेंट होंगे तो आप कुछ गेट ही नहीं कर पाएंगे. सोसाइटी पर डिपेंडेंट होना, इट्स वेरी रॉन्ग थिंग. अप्रिसिएशन इज अनदर थिंग. इफ सोसाइटी इज अप्रिशिएटिंग यू or degrading you, depressing you more, or moreover, like, it will depress you. ज्यादा से ज्यादा लोग डिप्रेस करते हैं, बट मेरा ये कहना है कि यू शुड बी योरसेल्फ. आप खुद में ही एक एक बड़ा सा एक आपकी लोगों को आपका अप्रिशिएट करने की कोई जरूरत नहीं. आप खुद को इतना अप्रिशिएट, इतना एबल करें कि लोगों को जो जो इसे कहते हैं, लाइक इसे कहते हैं आपके जो ऐसे लोग जो आपको इग्नोर, नेसियर्स, उसको कहते हैं नेसियर्स, जो आपको कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ आपका, अच्छा ये हुआ, वो ये हुआ, वो हुआ, अच्छा नहीं हो सका, तुम फेल हो गए. तो इन ऐसे ऐसे लोगों को इग्नोर करें. इट विल बी गुड थिंग. Okay, sir. Do we have more questions, or should we end up with the session?
सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी जी मैं प्रोसीड। जी जी सर जी हर कोई कहता है, लोग भी ये कहते हैं कि आप सक्सेसफुल बनो तभी आपकी मतलब सोसाइटी में रिस्पेक्ट होगी, तभी आप सोसाइटी में एक अच्छे रुतबे पे आएंगे। तो मतलब हर कोई कहता है कि आप सक्सेसफुल बनो, पर मतलब वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं, जो आपको मेंटोर करते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ऑब्वियसली इट्स ट्रू। मैंने सेशन में भी ये पॉइंट कही कि आपकी लोग आउटकम से ही आपको जज करेंगे, आपकी फर्ज कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। कोई आपका वेरी क्लोज होगा तो वो दूसरी बात है। बाकी आपकी कोई भी आपका आपकी जस्ट आउटकम ही देखेंगे। अगर आप मेडिकल में सिलेक्शन हो गई आपकी, तो वो देखेंगे या ये डॉक्टर बन गया, वो डॉक्टर बन गया, लाइक ही सिलेक्टेड। मैं अपने लाइफ में ऐसी काफ़ी चीज़ें फेस की थी कि जब मैंने एंट्री दी थी, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खुद का। जब मैंने एंट्री दी थी, जब मैंने फेल की थी, तो मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स थे, दे वर सिलेक्टेड। और उसके बाद तो उन्होंने ना ही मेरे साथ कांटेक्ट किया, ना ही मुझसे बातें की, और ना ही लाइक मुझे ऐसे फ़ील कराते थे कि तुम इन्फीरियर हो। और यही चीज़ें, काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो आपको हर्ट करती थी। मैं खुद तो इतना स्ट्रॉन्ग था, पर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपना आप अपने अपने आप के ऐसे ऐसे क्लोज़ फ्रेंड्स ऐसे सक्सेस मिले तो वो मतलबी हो जाएँ, सेल्फिश हो गए। तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, तो लाइक आपको जब सक्सेस मिलती है ना, तो वो का जब मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ था, तो और मेरी ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई थी, तो वो ही दोस्त वापस आए थे। वो ही जो चीज़ें जो लोग यू नो आई वाज़ फीलिंग लाइक कितना लाइक व्हाट इज़ द बिग डिफरेंस? दोज़ पीपल हू यूज्ड टू इग्नोर मी, लाइक दे आर कमिंग डायरेक्टली एंड दे आर मैसेजिंग मी, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। सो इट्स वेरी ट्रू, योर पॉइंट इज़ वेरी वैलिड पॉइंट। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती, तो आपको सोसाइटी रिस्पेक्ट नहीं करती। इट्स वेरी ट्रू। तो कीप ट्राइंग। अगेन कहा कि अगर आप क्विट करते हैं तो वो आपका फेल्योर नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, कीप ट्राइंग, इंशाल्लाह सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। अच्छा, कीप ट्राइंग का ये मतलब नहीं है कि आप टेस्ट दें फिर दें, टेस्ट दें, पढ़ा ना हो, कुछ इंप्रूवमेंट ना। अगर आप अगर आप फेल्योर होते हैं, तो उन चीज़ों को काइंडली इम्प्रूव करें। जो चीज़ें आपने जो दैट वर द काज ऑफ फेल्योर, वो चीज़ें इम्प्रूव करके ही आपको आगे जाना है। वो चीज़ें आप इम्प्रूव करेंगे तो आपको सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वो चीज़ें इम्प्रूव ना करना, फिर वहीं पर आना, वो चीज़ें इम्प्रूव ना करना, फिर वहीं पे आना, इसको हम फेल्योर भी नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं फुलिशनेस। कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो वो अगर चीज़ इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट लाइक वो फूलिशनेस है, वो फेल्योर नहीं। अगर आप अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव नहीं कर, अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो देन यू आर ब्रिलियंट, यू आर सक्सेसफुल। If you have fallen time after times, it's time to build it. Okay, would sir like to conclude the whole session for us before ending? Okay. Sir, thank you so much. Like guys, failure is not a step backward, it's just an excellent stepping stone to success, right? तो आप फेलियर को अपने उसमें मतलब रास्ते की रुकावट ना बनाए, आप उसको मतलब लाइक एक ऐसा स्टोन बनाए जिस पे आप स्टेप कर सके, जिस पे आप चढ़ सके। सो द थिंग इज दैट हमारे जो लोग हैं ना, वो हमें काफी डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, दैट व्हाई आर यू डूइंग दिस, या फिर आप ऐसे क्यों करे। सो जस्ट डू वन थिंग, आप लोग ऐसे कॉन्फिडेंट, लाइक दिस इज अ टिप फ्रॉम माय साइड, आप कॉन्फिडेंट रहे। आप चाहे कोई चीज गलत भी मतलब आपके जहन में क्यों मतलब लाइक गलत भी बोल रहे हो, उस टाइम फॉर अ शॉर्ट पीरियड, हर टाइम नहीं, जस्ट उसी टाइम आप कॉन्फिडेंट होके बोले, ताकि मतलब वो आप ऐसे है लाइक यू आर डिफेंडिंग योरसेल्फ, आप खुद को कमजोर होने ना दे। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, एंड आई थिंक वी शुड एंड विद द सेशन। Okay, so guys, we are ending up with the session. Thank you so much for joining. I hope आप सबके minds थोड़े से grow हो गए होंगे, थोड़ा सा motivation मिल गया होगा. So thank you so much, Dr. Ali Ilyas Napir, for your Welcome. good words. Thank you so much to you also. Thank you so much for joining us, and I'm sure
आप आगे भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे for as a good guidance provider. And thank you everyone. Allah Hafiz.